Good morning, everyone. Well, students, as you know, we have started this chapter, rectification of error, and we have discussed both kind of the methods, okay? I mean, the things which we have in this chapter. What is that? What kind of errors are there? Main two kind of errors, single-sided and double-sided error, right? So first we have taken the double-sided error, which is affecting at both the sides, debit and credit as well. And then we have discussed about the single-sided error. Well, there are two methods to attempt the single-sided error. One is in the way of statement. You are explaining the thing and you are mentioning in the bracket what to do. And second method is to create suspense account, because you can rectify it at one place, either that is debit or credit, and for the journal entry we require both the sides, right? So in the opposite side you can mention suspense account, okay? So just we are recapitulating the points. The errors which we can rectify, these are at different stages. The first stage where we detect the error before preparing the trial balance, okay, and we rectify that, right? Second one is after preparing the trial balance but before preparing the final accounts, we deduct and we rectify. And the next and last one is we detect the error after preparation of the financial statements or final account, okay? So this category is known in your syllabus, all right? So that we rectify in the next year, of course, when you prepare your financial statements, that's the end of the year, and later on you rectify, that means that goes in the next year, okay? So first two methods we have in our syllabus and we have discussed. So students, there is nothing very special to explain all the concepts and things we have discussed. So which 2 points I have told you for attempting these questions? What you have to keep in your mind? Rectification. You rectify the things where you have committed some mistake, okay? So mistake has taken place. What to do? Rectify the mistake first. तो पहला स्टेप है आपका कि जो गलती से गलत हो गया है उसे ठीक करना है. तो कैसे ठीक करेंगे? रिवर्स करके. मान लीजिए मैंने गलती से आपको 500 रुपीज़ दे दिए हैं, मैंने राम को दे दिए, गलती से देने शाम को थे, तो व्हाट आई विल डू? राम से मैं वापस ले लूँ, तो ये मैंने रिवर्स कर दिया. मैंने पहले दिया था, आई हैव टेकन बैक, तो दिस इज द रिवर्स वन, राइट? आप किसी को डेबिट कर देते हैं तो उसको क्रेडिट कर दो, क्रेडिट किया है तो डेबिट कर दो. सो दिस वे वी रिमूव द इट्स इफेक्ट. सो दैट वाज आवर फर्स्ट स्टेप. सेकेंड वन, देयर इज समथिंग करेक्ट, सही था कुछ ना कुछ जो हमने नहीं किया है ना, उसके बदले में हमने गलत कर दिया था, तो गलत तो हमने ठीक कर लिया. नाउ द पॉइंट विच इज करेक्ट दैट वी हैव टू डू, जो सही चीज है वो हमें करनी है, ओके? सो दिस वे दिस सिस्टम वर्क्स. So I'm taking one more illustration, so if somebody is in doubt, so you can understand better. Well, here rectify the following errors. The first point is credit sale to Arun. Credit sale to Arun, rupees 7,000 were recorded in purchase book. Students, one more thing which we have discussed, but I'm repeating it again, how to rectify the entries. Well, if you are perfect enough after practice, then there is no problem. But if you don't have perfection, so pass 2 entries in your working notes and then find out one rectified entry, okay? 2 entries. Which 2 entries? One is the correct entry which you are supposed to pass and you didn't pass, okay? Second one is your wrong entry which you have passed by mistake. So if you pass these 2 entries, so you can find out one rectified entry out of these. Those who have done the questions, they are getting that, okay? So the first one, it is telling credit sales to Arun, 7,000 rupees. Is that clear, students? Statement इतनी है, credit sales to Arun. Tell me, ये सही चीज है जो हुआ है, this transaction has taken place. So let us pass the correct entry first. क्रेडिट सेल्स टू अरुण. बताइए क्या एंट्री होगी? सेल को क्रेडिट करते हैं, दैट्स ऑन द क्रेडिट बेसिस, कैश नहीं मिल रहा है, तो एंट्री है आपकी अरुण अकाउंट डेबिट टू हाउ मच? 7,000. Right, students? Okay. Now what they have done further, the statement is explaining were recorded in the purchase book.
सेल्स था, बट आपने क्या कर दिया, किस में रिकॉर्ड कर दिया, परचेज बुक में कर दिया। तो आपने गलती से क्या एंट्री कर दी, परचेज बुक में डालेंगे तो परचेज आपने किया ही है सब्सिडी बुक्स, तो इट इज हैविंग द डेबिट बैलेंसेस एंड पार्टी का नाम हम लिखते ही है वहां पे, ठीक है। तो आपसे क्या हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू अरुण's अकाउंट, ये कर दिया आपने। आर यू गेटिंग? इफ यू आर नॉट क्लियर विद द ट्रांजेक्शन, सो जस्ट इंटरप्ट मी देन एंड देयर ओनली, ओके। ऑलराइट, ये हमारी करेक्ट एंट्री है, ये हमारी रॉन्ग एंट्री है। क्या करना है, मुझे रेक्टिफाई करना है। पहला स्टेप क्या समझाया था, जो गलती से गलत हो गया उसको रिवर्स कर दो, ठीक है। तो मैंने मिस्टर अरुण को गलती से यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, डेबिट कर दूँ, अरुण's अकाउंट डेबिटेड बाय 7,000 एंड परचेज का कोई मतलब ही नहीं था, राइट तो परचेज को आपने गलती से डेबिट कर दिया। हाउ टू रिमूव इट्स इफेक्ट, आई विल क्रेडिट इट टू परचेज अकाउंट बाय 7,000. Is that clear? So I have removed the effect of this wrong entry. All right, first step we have done. Now the second one, the correct thing which we are supposed to do and we did not do, we will do it now. What is that? सेल्स किया था हमने, दिस एंट्री वी हैव टू पास, अरुण अकाउंट डेबिट, बिकॉज आपने सेल किया तो अरुण इज योर डेटर, ऑलराइट। अब आप कहेंगे सॉरी कि अरुण को डेबिट कर तो दिया एक बार, ये नहीं है, ये क्या है, ये उसका इफेक्ट आपने रिमूव किया है गलत का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू टेक 500 रुपीज फ्रॉम वैभव, क्या क्या करना है मुझे, एवरीवन जस्ट आंसर मी, अपने आप को समझ लीजिए, ठीक है। मिस्टर राम से लेने हैं, चलिए आप मिस्टर राम है, सभी समझ लो, मुझे आपसे 500 लेने हैं, ठीक है, राइट। अब गलती से मुझे ध्यान नहीं रहा, मुझे लगा कि मुझे देने हैं 500 रुपीज़, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो मैंने आपको 500 रुपीज़ दे दिए, ठीक है। मेरे से क्या गलती हो गई, गलती क्या हुई कि 500 गलती से दे दिए। अब इस गलती को जैसे ही हमने रियलाइज़ किया, मैंने रियलाइज़ किया, तो आई वांट टू रेक्टिफाई इट। तो पहला स्टेप क्या होगा कि भाई गलती से जो आपको 500 रुपये दिए पहले तो वो वापस करो मेरे, ठीक है। और अब नॉर्मल हो गया, अब क्या करना है, मुझे 500 रुपये लेने थे आपसे, वो मेरे को दो, तो वो 500 लूँगी, कितने हो गए 1000। अब आप कहेंगे देने तो 500 थे, 1000 क्यों ले लिए, समझ आया क्यों ले लिए। तो यही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है, कि हमें अरुण को डेबिट करना था, अरुण को डेबिट तो किया नहीं बल्कि आपने उसको क्रेडिट कर दिया, तो अब मुझे डबल अमाउंट से करना पड़ेगा ना, राइट। सो आई एम टेकिंग द एंट्री लाइक दिस। दोज हु आर स्टेइंग एट होम प्लीज बी फोकस्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन, व्हाई डू वी टेक द डबल अमाउंट हियर, ओके। तो ये वाली ट्रांजेक्शन गलती से होगी, मैंने इसको रिवर्स कर दिया, यहाँ लिख दिया, नो प्रॉब्लम। अब मुझे सही वाली ट्रांजेक्शन करनी है, अरुण अकाउंट डेबिट, तो आई डोंट हैव टू राइट इट अगेन, अरुण अकाउंट इज ऑलरेडी डेबिट, ओके। सो आई विल राइट दिस अमाउंट हियर। आपको इस तरह से नहीं लिखना है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये आपको समझाने के लिए मैंने किया है, आप सब यहाँ पे 14,000 एक बार लिखेंगे, बट हाउ कम्स द 14,000, सो आई हैव रिटन इट। इज दैट क्लियर, समझ आ रहा है कि 14,000 कहाँ से आ जाएगा अचानक से, तो मैंने यहाँ को लिख के बताया है, बट आपको इस तरह नहीं लिखना है, राइट, ओके। नाउ सेल को क्रेडिट करना है जो हमने नहीं किया, सो वी विल डू, नो प्रॉब्लम, सेल्स अकाउंट 7,000। इज दैट क्लियर, डेबिट एंड क्रेडिट इज इक्वल, ठीक है, समझ आ गया। नाउ नेक्स्ट इज ऑल्सो लाइक दैट, क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम ब्रिज, yes, credit purchase, if you don't have book don't worry, just be focused. I said credit purchases, अब हम परचेज वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज, व्हाट इज द एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू हाउ मच, अमाउंट इज 9,000। बुक आपके पास है, बाद में देख लेना। सो दिस इज द राइट एंट्री, बट डिड यू डू दिस एंट्री, ये किया आपने, नहीं की, आपने क्या कर दिया,
वर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। गलती से आपने कौन सी बुक में डाल दिया ये? इट वॉज परचेज बट इंस्टेड ऑफ परचेज बुक यू हैव मेंशन इट इन द सेल्स बुक। सो विच एंट्री हैज पास्ड बाय यू बाय मिस्टेक? सेल्स क्रेडिट होता है, पार्टी का नाम आपने डेबिट कर दिया। जैसे ही सेल्स बुक में आप डालेंगे पार्टी का नाम तो ऑटोमेटिकली वो आपका हो जाएगा। तो आपने कर दिया ब्रिज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये कर दिया आपने। एंड ऑफ कोर्स अमाउंट इज दिस। इज दैट ओके? ठीक है, ये सही आपने किया नहीं, ये गलती से गलत कर दिया। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या है? फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? जो गलती से गलत कर दिया उसे ठीक करो। कैसे करेंगे? रिवर्स कर देंगे। सो आई हैव डन सेल्स अकाउंट डेबिट टू ब्रिज अकाउंट 9000। ऑलराइट, फर्स्ट स्टेप हो गया। नाउ सेकेंड वन इज, जो सही था और हमने नहीं किया वो हम करेंगे। सही क्या था? परचेज टू ब्रिज, राइट? सो आई विल पास दिस एंट्री। हाउ? हियर इज द सेल्स अकाउंट, सो नो प्रॉब्लम, सेपरेटली वी विल राइट हियर परचेज अकाउंट डेबिट by 9000 to bridge, and bridge account is already open here, so I will just add the amount, that is 9000. So you please don't do like this everyone, okay? Those who are at home please pay attention. आपको 9 + 9 नहीं लिखना है, 18 लिखना है यहाँ पे, ठीक है? हो गई रेक्टिफाइड एंट्री? कोई प्रॉब्लम इसमें? सिर्फ जर्नल एंट्री की आपको नॉलेज होनी चाहिए, एंड हाउ टू अटेम्प्ट दिस यू शुड हैव this basic concept clear in your mind. Narration is simple. This is, first one is credit sales to Arun, 7,000 were recorded in the purchase book. They have mentioned in the book credit sales to Arun wrongly credited in the purchase book. Wrongly credited in the purchase book. And credit purchases from bridge wrongly recorded, like जो आपने गलती की है वो mention, now rectified, this also you can do, कि wrongly posted in the purchase book, now rectified, wrongly purchased in the sales book, now rectified, ठीक है? next जो आपकी आगे वाली है, नरेशन लिखनी है बेटा। जहाँ कहीं भी जर्नल एंट्री करते हैं तो यू हैव टू राइट। ये कम से कम मैंने 10 से 15 बार बात ये बताई है, अभी भी बताइए, ये वीडियो देख लेना, रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है? कि ये 2 एंट्रीज आपको पास नहीं करनी है। अगर आप, इफ़ यू आर एक्सपर्ट इनफ, यू कैन डू इट लेटर ऑन आफ्टर हैविंग प्रैक्टिस। ये सेंटेंस मैंने बोला है, आज घर जाके सुनना वीडियो, ठीक है? फिर से सुन लो। आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं, वर्किंग नोट में ये दोनों एंट्री पास करो, इनसे एक रेक्टिफाइड एंट्री आएगी, ये आपको फेयर में करना है 10 से 15 बार। ये 16वीं बार हो गया बताया हुआ, ठीक है? अब याद रहेगा आपको। So students, we have taken A and B points of illustration number 4. Rest of that you can do it yourself. It is like that only. There is no need to repeat. Well, I'm taking illustration number 6. Here you will find the different kind of entries, although these are also very easy. We have discussed it. Now the first point, illustration number 6 is telling. हाँ जी, illustration number 4 पे कौन सा? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में से कोई एक बता दूँ? ओके, चलिए थर्ड वाला ही देख लो। अगेन इलस्ट्रेशन 4 पॉइंट नंबर सी, गुड्स रिटर्न टू चारू, ₹4,000 were recorded in the sales return book. So just think in the same way as I have told you, go step by step, you will not have any problem, okay? So it's telling goods return to चारू, लैंग्वेज पे ध्यान देना है। रिटर्न टू एंड रिटर्न फ्रॉम 2 चीज़ें होती हैं, अंग्रेजी की बात कर रहे हैं हम। रिटर्न टू यानी आपने चारू को रिटर्न किया है, रिटर्न फ्रॉम चारू यानी चारू से वापस आया। तो आप वापस कब करते हैं और कब आता है, ये पॉइंट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। आप कब करते हैं लोकेश? आप वापस कब करते हैं? जब आप परचेज करके लाते हैं। कोई दूसरा, रिटर्न फ्रॉम दैट पर्सन व्हेन दिस हैपन्स, व्हेन यू हैव सोल्ड समथिंग, जब आपने कुछ बेचा हो, जब दूसरा वापस करने आता है। आर यू गेटिंग दिस राइट? सो गुड्स रिटर्न टू चारू, 4,000 की आपने चारू को गुड्स रिटर्न की है, तो ये क्या हो गया आपका
परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? परचेज डेबिट होता है और परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। ओके, परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। किसको किया है, आया कुछ नहीं है, किसको किया है आपने रिटर्न, चारू को किया है। सो दिस इज चारू's अकाउंट डेबिट। You are seriously nonsense. No, he has indicated you to come, but still you have done anyway. So this is Charu's account debit to purchase return account. How much amount is given? 4,000. So this is the correct entry. We are talking about the return entry. Okay. Let us do it first, then you can answer. बोलो। क्या? I'm just preparing the video. Let us do it first, and I will give the answer of all the damn queries of yours. Okay? Just focus. So it is goods return to Charu. We are doing return to Charu, यानी चारू को वापस कर रहे हैं। रिटर्न फ्रॉम का मतलब होता है वो हमें वापस कर रहे हैं, ठीक है। रिटर्न टू करने का मतलब परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है, किसको किया है, चारू को किया है। इज दिस एंट्री क्लियर? So this is the correct entry. Okay? तुषार, आर यू गेटिंग? समझ, ये वाली समझ आ रही है, पीछे वाली हम कर लेंगे। क्लियर है ये एवरीवन? बट व्हाट यू हैव डन बाय मिस्टेक, आगे पढ़ो, वर रिकॉर्डेड इन द सेल्स रिटर्न बुक। क्या कर दिया आपने, सेल्स रिटर्न बुक में कर दिया। सेल्स रिटर्न बुक में कर दिया तो उसकी क्या एंट्री कर दी आपने, सेल्स रिटर्न बुक डेबिट होता है। ओके, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू। दिस इज 4,000, राइट स्टूडेंट्स? सो दिस इज रॉन्ग एंट्री विच यू हैव डन। ओके, नाउ आई हैव टू रेक्टिफाई वंस अगेन। ये आप एंट्री पास नहीं करेंगे अपनी फेयर नोटबुक में, ये एज अ वर्किंग प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अब इसमें से आप सॉर्ट आउट करेंगे जो आपकी रेक्टिफाइड एंट्री होगी। पहला स्टेप क्या है, जो गलती से गलत हो गया उसे सही करो। क्या गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। सेल्स रिटर्न को आपने डेबिट कर दिया तो इसको क्रेडिट करके खत्म करो। सेल्स रिटर्न अकाउंट बाय 4,000, चारू को गलती से डेबिट कर दिया, सॉरी क्रेडिट कर दिया तो इसको डेबिट करो। चारू's अकाउंट डेबिट बाय 4,000। ओके, रिवर्स कर दिया ये। अब जो सही चीज है, जो नहीं की वो करो। क्या है, चारू's अकाउंट डेबिट, तो चारू इज, वी हैव ऑलरेडी मेंशन इट, डेबिट करना है 4,000 से, तो इस 4 को हमने क्या कर दिया, 8, ठीक है। 4 हमने ऐड कर दिया इसमें। एंड परचेज रिटर्न को हमें क्रेडिट करना है, परचेज रिटर्न अकाउंट 4,000। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा लोकेश? ओके, नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 6. I will take these entries in short. The first one is 2,000 paid for furniture purchased has been debited to purchase account. This we have already discussed. कि you have done what? You have purchased furniture, but your concepts were not clear. So by mistake you have entered in purchase account. ठीक है? The correct entry is furniture account debit to किया क्या है आपने, फर्नीचर परचेज किया है, ठीक है। तो करेक्ट एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। द नेम ऑफ द पार्टी इज नॉट गिवन, इट इज नॉट मेंशन आइदर इट इज ऑन कैश और क्रेडिट, सो दिस इज ऑन कैश बेसिस। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? फर्नीचर परचेज करते हैं तो असेट्स का नाम आएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। कितने का है ये, इट इज ऑफ 2,000। सो दिस इज योर करेक्ट एंट्री। फाइन। गलती से क्या हो गया आपसे, आपने इसको परचेज में डाल दिया। आपने क्या एंट्री कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, सो दिस कैश अकाउंट इज करेक्ट, नो प्रॉब्लम, आपने सही उसको पोस्ट किया है। बट व्हाट यू हैव डन, द मिस्टेक इज, यस, व्हिच मिस्टेक यू हैव कमिटेड, you didn't debit the this furniture, rather you have debited the purchase. So how to deal with it, how to remove its effect, which steps we have to know?
बाय मिस्टेक इफ यू हैव डन समथिंग सो जस्ट डू द रिवर्स, उसको हम रिवर्स कर देंगे एंड द मिस्टेक विल बी रेक्टिफाइड, राइट। सो द रेक्टिफाइड एंट्री इज, ये गलत किया है हमने तो इसको रिवर्स कर दो पहले। ये परचेज आपका क्या है, डेबिट है, तो इसको क्या कर दो, क्रेडिट, राइट। कैश को हमें नहीं छेड़ना है, ठीक है। एक चीज हो गई आपकी ठीक। दूसरी क्या है, जो सही चीज है वो करनी है। फर्नीचर हमने डेबिट नहीं किया तो उसको कर दो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, दैट इज ऑफ 2000। इज दैट ओके? हो गया तुषार बेटा, समझ आ गया ये वाला? हाँ जी, मैंने कहा ना कि कैश हमारा देखो सही पोजीशन पे है, ये होना चाहिए था और मैंने ये कर भी दिया, ठीक है। आर यू गेटिंग? ये वो एंट्री है जो हमने की नहीं बट इट इज करेक्ट। और जब हमने की, तुषार इधर देखो, ये एंट्री हमने पास की तो हमारा कैश सही पोजीशन पे है, तो वी डिडंट टच दैट। ऑलराइट, क्लियर टू एवरीवन? नाउ नेक्स्ट वन, next we have 3000 paid to Mohan Lal for salary was debited to his personal account. Students, I have told you one day that salary you are paying to any human being, either that is Ram Lal, Mohan Lal, Sohan Lal, you are paying salary, okay? But we are thinking from business point of view, right? Paid means paid. You don't have to write the name of a person. एंड दैट इज योर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के लिए आप एक्सपेंसेस का नाम डेबिट करते हैं, ना कि पर्सन का नाम, ठीक है। तो हमेशा सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर डन, ऑलराइट। सो सैलरी 3000 पेड टू मोहन लाल फॉर सैलरी was debited to his personal account. So what is the right entry, students? Right entry is salary account debit to cash 3000. एवरीवन, हरिओम, आर यू अंडरस्टैंडिंग बेटा? नहीं, सैलरी पे करते हैं तो क्या एंट्री होती है? सैलरी पेड। आपको समझ आ रहा है बेटा? मनीष, योगेश, अमन समझ आ रहा है आपको? इसको मत देखो प्लीज, बुक को मत देखो, इधर समझो पहले। मैं आपसे 100 टाइम्स रिक्वेस्ट की है कि जब मैं पढ़ा रही हूँ तो इधर देखो, बुक में मत देखो। बुक में रेक्टिफाइड एंट्री है, ये एंट्रीज नहीं बता रखी है इस तरह, है ना। मेरी बात पे फोकस करो, वो समझ आई या नहीं आई? मैंने एक सिर्फ छोटी सी जर्नल एंट्री बोली है आपको कि सैलरी पेड, क्या एंट्री होती है उसकी? ये पता है आपको हरिओम? तो फिर क्या समझ नहीं आया? यहाँ देखोगे तो जिंदगी में कभी नहीं समझ में आएगा, और अगर इसमें देख के पढ़ना है तो घर रह के पढ़ो आराम से, टीचर की कोई जरूरत नहीं है। कितनी बार बोलती हूँ क्लास में कि बुक में अभी मत देखो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। क्यों नहीं समझ रहे हो आप लोग? यस, टेल मी द एंट्री वंस अगेन। सैलरी पेड, ये सही एंट्री है। क्या आपने की? नहीं की, ठीक है। क्या मैं फारसी में बोल रही हूँ जो आप लोगों को समझ नहीं आता? ये एंट्री आपने नहीं की, ठीक है। गलती से आपने क्या कर दिया, ये सैलरी आपने किसको दी थी? मोहन लाल को पे की थी। आपसे क्या गलती हो गई? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो आपने क्या कर दिया? मोहन लाल अकाउंट डेबिट टू कैश, ये कर दिया आपने, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? ये गलत एंट्री है, ये सही एंट्री है, आपने ये कर दिया, ठीक। पहला स्टेप क्या है रेक्टिफिकेशन का, कि जो गलती से गलत कर दिया उसको मिटा दो, हटा दो, रिवर्स कर दो। आप देख रहे हैं कि कैश हमारा सही पोजीशन में है, तो वी डोंट हैव टू टच द कैश, ओके। दिस इज रॉन्ग। मोहन लाल को गलती से डेबिट कर दिया, तो अब इसको क्या कर दूं मैं? मोहन लाल अकाउंट मैंने क्रेडिट कर दिया, इसका इफेक्ट खत्म हो गया? यस और नो? हो गया। दूसरा स्टेप क्या बताया है? जो सही है और आपने नहीं किया उसे करो। क्या सही है? सैलरी आपने डेबिट नहीं किया, सैलरी अकाउंट डेबिट थी। समझ में आया? अब देख लो बुक, देखो क्या है, यही दे रखा है ना, यानी गलत नहीं पढ़ाया आपके टीचर ने, सही है।
थैंक गॉड। चलिए, लेट्स टेक वन मोर। इट इज पॉइंट नंबर 5 or you can take the third one also. Okay, let me should I explain you, because if we take it like this, so hardly we will be solving one or two. Should I explain all these entries? नहीं समझ में आया, ठीक है। थर्ड वाली, 500 paid to proprietors medical bill were debited to sundry expenses account. This is telling 500 paid for proprietors medical bill. ये किस तरह का खर्चा है? पर्सनल है या बिजनेस का है? पर्सनल खर्चा किस नाम से दिखाते हैं आप? ड्राइंग के नाम से। तो व्हाट इज द राइट एंट्री? आई एम आस्किंग, डोंट लुक इनटू द बुक प्लीज। करेक्ट एंट्री क्या होगी? प्रोप्राइटर्स मेडिकल बिल पेड कितने का है? 500 का। तो ये ड्राइंग है, पर्सनल एक्सपेंसेस है, एंट्री क्या हो जाएगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 500। हरिओम, समझ आ रहा है? बुक में मत देखना अमन। तो ये करेक्ट एंट्री है, आपने ये नहीं की, ठीक है। आपने क्या कर दिया कि ये जो आपने बिल पे किया, यू हैव टेकन इट एज एन एक्सपेंसेस, एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस में छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं वो आप डालते हैं, एंड यू हैव केप्ट इन सन्ड्री एक्सपेंसेस। ओके, सो द एंट्री विच इज पास बाय यू इज सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश 500। ये आपसे गलती हो गई, ठीक है। सन्ड्री, इज दैट ओके? फाइन स्टूडेंट्स, नाउ वी विल बी रेक्टिफाइंग द एंट्री। रेक्टिफिकेशन का देखो, हर एंट्री में, हर ट्रांजेक्शन्स के लिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। अगर आपने एक बार, दो बार, तीन बार नहीं सुनी तो आप लास्ट बार भी सुन सकते हैं। एक बार भी सुन ली तो समझ आ जाएगा, ठीक है। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज टू रिमूव द रॉन्ग इफेक्ट। गलती क्या हो गई आपसे? कैश इज एट द राइट पोजिशन, यू कैन सी। क्रेडिट करना था, आपने क्रेडिट किया है, देयर इज नो प्रॉब्लम। गलती क्या हुई है? सन्ड्री एक्सपेंसेस को आपने गलती से डेबिट कर दिया, तो इसको क्रेडिट करके खत्म करो। एस फॉर सन्ड्री, ओके, क्लियर है? गलती हमने हटा दी है, रिमूव कर दिया इसका इफेक्ट। Now the right thing which we were supposed to do and we didn't do, that we will be doing. What is that? Drawing account debit. Understood that? देख लो, बुक चेक कर लो आप, ठीक है। आ गया समझ में? Next we have typewriter purchase for ₹7,500 has been wrongly passed through the purchase book। हाँ, आपने सुनना नहीं था मैंने क्या कहा था? सुना नहीं तो जवाब भी नहीं दिया, तो क्या करूं? क्या कह रहे हो? कौन करा रहा है तुम्हें सारे इलस्ट्रेशंस? क्यों खुश हो रहे हो? Typewriter purchase for ₹7,500 has been wrongly passed through the purchase book. आपने क्या किया? Yes, please. What you have done? Yes. क्या किया आपने? I'm telling you to go through the transaction only. आंसर मत देखो। क्या किया? टाइपराइटर परचेज किया, ठीक है। तो क्या टाइपराइटर आपका इसमें आप डील कर रहे थे? इट इज़ असेट्स, राइट? असेट्स, जैसे अभी हमने फर्नीचर डेबिट किया था, दैट्स द सेम स्टोरी। तो आपने क्या परचेज किया है? टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का है? इट्स 7,500, राइट? सो दिस इज द करेक्ट एंट्री विच वी डिडंट पास। व्हाट वी हैव डन, वी हैव पास्ड इन द परचेज बुक। हमने परचेज बुक में डाल दिया, इसको ऑर्डिनरी परचेज ले लिया। एंट्री पास बाय यू, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। दिस इज द रॉन्ग एंट्री, ऑलराइट। ये आपने पास नहीं की, ये गलत कर दी है। सो जस्ट हैव अ लुक, कैश की सही पोजीशन है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, सो वी वोंट टच दैट। गलती क्या हो गई? आपने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो इसको कैसे ठीक करेंगे? टू परचेज अकाउंट, this will be credited by 7,500, and the right thing is to debit the typewriter.
अंडरस्टूड दैट? चेक द एंट्री. क्या? ऑफिस इक्विपमेंट भी लिख सकते हैं आप, ठीक है. असेट्स का नाम, या फिर वी जनरली यूज इन ऑफिस, सो यू कैन यूज द ऑफिस इक्विपमेंट. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? So this way we will be doing. So I'll give you one more class of that. I will be taking one question from the single-sided errors tomorrow, and then we will wind up. So you have 2 days only to complete this chapter today, and try to understand. गलती से tomorrow बोल दिया, मेरे माइंड में नहीं था कि भाई कल संडे है, ठीक है मंडे को लेंगे, तो मंडे कल का टाइम है, you got a benefit, ठीक है, and मंडे का टाइम है आपका. Yes, right students? So those who are staying at home, please be particular about the thing, be focused. That's very easy chapter, okay, and practice as many questions as you can do. Thank you.